Hi everyone. So today is session 2 and we are going to learn these things. Constituents of sentence. So what is the meaning of constituents? It is nothing but parts. Parts of a sentence and then rank scale. Okay. So again this is very basic concept and most people ज़्यादातर लोग discuss ये नहीं करते but we would like to discuss. Okay. Alright, let's move on. Here is a fact. So, one of the most common mistakes we all do in English is writing incorrect sentences. So, if you know, okay, this sentence part in detail, अगर आपको sentence जो भी आज हम discuss करेंगे, if you can understand, we can easily minimize these common mistakes. Okay, okay, all right. Let's begin. So, let's take a small example first of all. For example, if you want to prepare tea, how many ingredients do we need? कितने ingredients? 4 ingredients. Milk, water, sugar and tea powder. Right? So total 4 ingredients. In the same way, sentence may be there are 4 parts. Sentence may be there are 4 parts. First one morpheme, second one word, third one phrase, fourth one clause. So when you combine all these things, that creates a sentence. That creates a sentence. Let's see. So here I've drawn one more diagram. It's easy to understand. So morphemes आप यहाँ देख सकते हो level 1 में. And then जब हम दो morphemes को link करेंगे तब हमें मिलेगा word. And जब हम दो words को merge करेंगे, दो or more, then we get a phrase. जब हम दो phrases को connect करेंगे, then we get a clause. जब हम दो clauses को connect करेंगे, then we get clause complex or a sentence. Clause is also called a sentence. So clause or clause complex, nothing but a sentence. But इस sentence को connect करना है तो we need these things: morpheme, word and then phrase. So priority यहाँ पे ये क्या है? So rank scale जो आप या आपको याद होगा initially में already I told you. Let me show you. Constituents of the sentence and rank scale, right? So constituents मतलब parts है, कितने parts? 4 parts. And then rank scale. अभी हम rank scale discuss करने वाले हैं. So rank scale is nothing but ranking measure करना. कैसे? So morpheme takes low priority क्योंकि दो morphemes को use करके हम sentence create नहीं कर सकते. And morpheme मतलब क्या है, word मतलब क्या है, we will discuss this in detail in the next few minutes. Okay. So morpheme always takes low rank and then clause takes high priority because clause itself is sentence. मैं फिर से explain करूँगा morpheme ये सब discuss करने के बाद, then you will get it easily. Now let's see morpheme मतलब क्या है. So morpheme is nothing but smallest unit of a word. For example, आप weight को कैसे measure करते हो? weight को kg kilograms. Smallest measurement क्या है? milligrams. In the same way, English में एक sentence को measure करना है तो okay. We use morphemes. Okay, we use morphemes. For example, यहाँ पे you can see here knowing is wonderful. It's just a normal sentence. If you see here, हम इसको debug करके morphemes कितना है ये discuss करेंगे अभी. But let's see the definition. So morpheme मतलब smallest unit of a word. फिर next word यहाँ पे focus करना आप. It cannot be broken down further. इसका मतलब इसे हम आगे तोड़ नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स सी morphemes यहाँ पे कितना है.
knowing, नो ing. सो ये एक मॉर्फिम है, सेकंड मॉर्फिम ing. एंड इज को हम आगे तोड़ सकते हैं नहीं, सो ये थर्ड मॉर्फिम. वंडरफुल, यस, हम इसको कर सकते हैं. वंडर एक हो गया, फुल एक हो गया. अब वंडर को कर सकते हैं नहीं, इसलिए 4 में दिया. फुल को कर सकते हैं नहीं, 5, इसलिए. सो अभी नो इज अ मॉर्फिम. क्यों? क्योंकि हम इसे आगे तोड़ नहीं सकते. बट नोइंग इज अ मॉर्फिम, नो, क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. एंड हियर यू कैन सी सम मोर एग्जांपल्स. वॉक, मॉर्फिम, क्योंकि हम इसे आगे तोड़ नहीं सकते. इंग इज ऑल्सो ए मॉर्फिम. टॉक, मॉर्फिम. ईडी, मॉर्फिम. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड मॉर्फिम. मॉर्फिम मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड और यूनिट ऑफ ए वर्ड, और इसे हम आगे तोड़ नहीं सकते. देन नोइंग क्या है यहाँ पे? नाउ नोइंग क्या है? व्हाट इज नोइंग? अब इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा वर्ड. सो वर्ड इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मॉर्फिम्स. सो इफ यू सी हियर, वॉक क्या है? मॉर्फिम, क्योंकि हम इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते. और आईएनजी क्या है? आईएनजी भी एक मॉर्फिम है, क्योंकि आगे हम इसे तोड़ नहीं सकते. सो जब हम ये दोनों कनेक्ट किया, तब हमें क्या आएगा? वर्ड आएगा. सो इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ मॉर्फिम्स वुड गिव अस अ वर्ड. इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बोला था वॉक इज ए मॉर्फिम और आईएनजी इज ए मॉर्फिम. जब हम दोनों को कनेक्ट किया, एक वर्ड मिला था, वॉकिंग. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. एंड यहाँ पे आप ये भी आइडेंटिफाई करना है, व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर द वर्ड हैज़ टू बी मीनिंगफुल. फॉर एग्जाम्पल, आईएनजी क्या है? आईएनजी एक मॉर्फिम है. मैं एक और आईएनजी लिया, दोनों भी मॉर्फिम है. बट अगर मैं कनेक्ट किया, इंग आया. डज इट मेक एनी सेंस? नो. सो इसका मतलब है, जब दो मॉर्फिम्स को आप कनेक्ट करते हो, मीनिंग होना है. ओके, इसलिए इफ यू सी हियर, वॉक इज अ मॉर्फिम एंड आईएनजी इज अ मॉर्फिम. जब ये दोनों कनेक्ट किया, इट मेक्स सेंस. एंड देन टॉक भी दो मॉर्फिम्स कनेक्ट किए, एंड देन वी हैव गॉट ए वर्ड. ओके, सो नाउ लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. क्लासरूम, हाउ मेनी मॉर्फिम्स डू वी हैव? सो आपको मॉर्फिम्स एंड वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स, ये भी आइडेंटिफाई करना है. ओके, या दिस 3 आर इनफ. सो क्लासरूम में कितने मॉर्फिम्स हैं? क्लासरूम में, इन क्लासरूम वी हैव 2 मॉर्फिम्स. क्या क्या है? क्लास एंड देन सेकंड वन इज रूम. वर्ड्स कितने हैं? ओनली 1 वर्ड, क्लासरूम, क्योंकि 2 मॉर्फिम्स को हमने कनेक्ट किया और एक वर्ड आ गया. नेक्स्ट, सेकंड वन, अगेन 2 मॉर्फिम्स, एक्साइट, एड. जब हम ये दोनों कंबाइन किया, एक्साइटेड हुआ. एंड देन टेबल में कितने मॉर्फिम्स? ओनली 1. सो वर्ड भी कितना है? ओनली 1. ओके, सो दैट इज ऑल. आई होप यू अंडरस्टूड. सो लिंक भी मैं शेयर करूँगा आज, इसके रिलेटेड असाइनमेंट जो भी है. थर्सडे है ना, सो यू कैन क्विज लिंक होगा वहाँ पे. ऑलमोस्ट यू विल हैव सम 20 क्वेश्चंस. आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कितना आपको समझ में आया या कितना नहीं आया. ऑलराइट, अभी हम आगे जाएंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फिम. क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? और टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स क्या क्या है? टाइप्स सिंपली. ओके, so types of morphemes, there are 2 types: free morpheme and then bound morpheme. Free morpheme and the bound morpheme.
फ्री मॉर्फिम मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट मॉर्फिम। इसका मतलब दे कैन स्टैंड अलोन, मीन्स दे विल हैव देयर ओन मीनिंग, दे विल हैव देयर ओन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल ईट, ईट क्या है? मॉर्फिम, क्योंकि हम इसे आगे तोड़ नहीं सकते। टॉक, मॉर्फिम, ओके, मीनिंग है या नहीं? यस, ओके, ऑल दीज वर्ड्स हैव देयर ओन मीनिंग। तो फिर बाउंड मॉर्फिम मतलब क्या है? बाउंड मॉर्फिम मीन्स डिपेंडेंट मॉर्फिम्स। डिपेंडेंट मॉर्फिम्स मतलब दे डिपेंड ऑन अदर मॉर्फिम्स, ओके, और फ्री मॉर्फिम्स। फॉर एग्जाम्पल ing ing, डज इट मेक एनी सेंस? नो। बट अगर इसको मैं फ्री मॉर्फिम के साथ कनेक्ट किया, वॉक क्या है? वॉक इज फ्री मॉर्फिम, वॉक इज फ्री मॉर्फिम, और इसको मैं बाउंड मॉर्फिम से कनेक्ट किया, देन इट मेक्स सेंस, बाउंड मॉर्फिम। सो फ्री मॉर्फिम मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, वो किसी वर्ड के मॉर्फिम में, ओके, या वर्ड में डिपेंड करने का ज़रूरी नहीं है फ्री मॉर्फिम्स को। बट बाउंड मॉर्फिम्स हम अकेले सिर्फ बाउंड मॉर्फिम्स को यूज़ नहीं कर सकते, लाइक इंग, अन, एट, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा वी हैव टू यूज़ देम विथ फ्री मॉर्फिम्स, विथ फ्री मॉर्फिम्स। I hope you understood this concept also. I'll give you some more examples here. Walking. So, let me. So, walking में try to answer this question. वॉकिंग में कितने फ्री मॉर्फिम क्या है, बाउंड मॉर्फिम क्या है? वॉकिंग में फ्री मॉर्फिम क्या है, बाउंड मॉर्फिम क्या है? सो फ्री मॉर्फिम इज, या फ्री मॉर्फिम मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब दे विल हैव देयर ओन मीनिंग। अगर हम वॉक ing है ना, इसको आगे तोड़ सकते? यस, वॉक प्लस ing। सो वॉक, वॉक को हम आगे तोड़ नहीं सकते और इसका मीनिंग तो है, इसलिए फ्री मॉर्फिम होगा, और ing बाउंड मॉर्फिम है, राइट? Now let's answer the second one. Unreliable. Unreliable. Yeah, free morpheme, bound morpheme. So free morpheme क्या है यहाँ पे? First of all, let's split this word. कैसे हम लिख सकते हैं इसको? Un plus rely plus able. So rely मतलब क्या है? Dependence. Okay. Synonym, depend. Okay. For example, she always relies on her parents to take her own decisions. इसका मतलब वो हमेशा उनके पेरेंट्स में डिपेंड करते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। सो अभी यहाँ पे फ्री मॉर्फिम क्या है? रिलाई, क्योंकि इसका ओन मीनिंग है। एबल, एबल मतलब आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं कर सकता हूँ इसको। सो दो फ्री मॉर्फिम्स है, और ये क्या क्या है? रिलाई और एबल। अन, अन क्या है? अन इज ए बाउंड मॉर्फिम, क्योंकि अगर अन अकेला लिखा तो इट हैज़ नो सेंस, राइट? Doesn't make any sense. So un is a bound morpheme. So with that we have finished the second example. Now let's see the third one. Disrespect. Yeah, disrespect में free morpheme, bound morpheme. Free morpheme क्या है? Free morpheme is, yeah, respect. And then bound morpheme क्या है? Dis. I hope you understood क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फिम्स कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सेंटेंस, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंस। इस पे कितने पार्ट्स? मॉर्फिम, वर्ड, फ्रेज एंड देन क्लॉज, एंड देन फिर इसके बाद रैंक स्केल भी हमने देखा था। क्या है? दो मॉर्फिम्स को व्हेन वी कनेक्ट वी गेट अ वर्ड, और वर्ड प्लस वर्ड मिलेगा फ्रेज, फ्रेज प्लस फ्रेज मिलेगा clause. Okay, clause is nothing but a sentence. And then morpheme में types क्या क्या है? morpheme में types free morpheme, bound morpheme. So, and now यहाँ पे if you see here this un, यहाँ पे ing, यहाँ पे dis,
इसके लिए दूसरा नाम भी होगा. ओके, वी कैन कॉल these words with other name also. The other name is prefix और suffix. So prefix मतलब क्या है? Prefix मतलब जो word है ना, ये जो word है ये आएगा, मतलब it can be un, dis, ये bound morphemes है ना. When a bound morpheme comes before the free morpheme, जब एक बाउंड मॉर्फिम फ्री मॉर्फिम से पहले, मतलब बाउंड मॉर्फिम प्लस फ्री मॉर्फिम अगर ऐसा आया ना, देन बाउंड मॉर्फिम को हम प्रीफिक्स कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेम डिसरेस्पेक्ट. सो रेस्पेक्ट क्या है? फ्री मॉर्फिम. डिस क्या है? बाउंड मॉर्फिम. सो डिस को हम प्रीफिक्स कह सकते हैं. क्लियर हो गया. Then for here you can see here preoccupied, for example, or unsatisfied, disrespect, okay, and so on. Junk food is unhealthy, dislike. So unhealthy में un is, un क्या है? बाउंड मॉर्फिम. और हेल्दी क्या है? फ्री मॉर्फिम. फ्री मॉर्फिम से पहले आया बाउंड मॉर्फिम, सो इसलिए इस बाउंड मॉर्फिम को हम प्रीफिक्स कहते हैं. तो फिर सफिक्स मतलब क्या है? सफिक्स मतलब बाउंड मॉर्फिम, सॉरी, पहले फ्री मॉर्फिम आएगा फिर बाउंड मॉर्फिम आएगा. ओके. सो फॉर एग्जांपल क्विकली. क्विक क्या है? क्विक इज फ्री मॉर्फिम, एलवाई इज बाउंड मॉर्फिम. सो प्रीफिक्स में बाउंड मॉर्फिम पहले आएगा फिर फ्री मॉर्फिम आएगा. सफिक्स में फ्री मॉर्फिम पहले आएगा, बाउंड मॉर्फिम बाद में आएगा. गार्डनर, गार्डन free morpheme, er bound morpheme. That's all. So with that we have finished today's concept and thank you so much. कल हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो कल हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के बाद इसके अंदर क्या क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे. फिर और ओके, एंड देन हम डिस्कस करेंगे फ्रेज. फिर इसके बाद क्लॉज. एंड देन हम वर्ड को इन डिटेल डिस्कस करेंगे लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, ऑलराइट. थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो. बाय.